basics of 12th science. So in previous lecture you have studied the cohesive force and adhesive force. So what is the cohesive? The force of attraction between two molecules of same substance called as the cohesive force, and adhesive force, the force of attraction between two molecules of different substances called as the adhesive force. अब रहा सवाल कि जैसे when molecules are so concerned, so we are studying here the surface tension on the basis of molecular theory. So we consider a certain jar. अब इसमें हम क्या करेंगे? पानी भर देंगे. So what? This is the liquid surface. So it consists in the water or liquid. So we consider the three sphere of influence. The sphere of influence A. This is the sphere of influence A, and another one, the sphere of influence, इसको नाम देंगे हम B. The sphere of influence B, and the sphere of influence C. इसको नाम देता हूँ C. So what? As soon as this three sphere of influence are concerned, we are observing what? The sphere of influence A lie wholly inside the liquid. Sphere of influence B is just outside the liquid, and the maximum portion is inside the liquid, and the sphere of influence C is partly outside and partly inside the liquid. मतलब आधा अंदर है और आधा बाहर है. So what? Due to the cohesive forces means to the sphere of influence A, from all portion of the liquid, they exerting the force. They are exerting the cohesive force, and so therefore their net, this is the lie wholly inside the liquid, पूरी तरह अंदर होने की वजह से इधर से भी फोर्स एक्ट होगा और इधर से भी फोर्स एक्ट होगा, और नेट अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस ए इज 0. मतलब इस पर जितना फोर्स सभी चारों दिशा से इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, and due to that force are cancel each other, and so therefore net amount of force acting on the sphere of influence A is 0. अब क्या होता है कि स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस B के बारे में सोचते हैं. अब इसमें क्या होगा कि स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस B पर नीचे वाले जो है लिक्विड मॉलिक्यूल और स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस एक्सर्टिंग द कोहेसिव फोर्स, लेकिन ऊपर खींचने वाला कोई भी नहीं है. ऊपर खींचने वाला फोर्स है नहीं, इसका मतलब यही इसको नीचे खींच रहा है, इधर वाला भी उसको नीचे खींच रहा है, इधर वाला भी उसको नीचे खींच रहा है. सो इसका मतलब यह हुआ due to the large portion of the sphere of influence B is lie wholly inside the liquid, and so therefore the net amount of cohesive force towards the downward direction is maximum, and so therefore that sphere of influence B is pulled in downward direction. अब यहाँ पे देखते हैं, in case of the sphere of influence C, which is partly outside and partly inside the liquid, so what again due to the cohesive force and towards the half portion of the sphere of influence B, the cohesive force is exerted, but there is no cohesive force is acting on the upper portion, which is lie in air portion. मतलब इस साइड में कोई फोर्स होगा ही नहीं, इधर में फोर्स होने की वजह से, इधर में फोर्स होने की वजह से वो नीचे की तरफ ही मैक्सिमम फोर्स होगा, एंड सो देयरफॉर द स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस C आल्सो मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो इसका मतलब यह हुआ कि such a sphere of influence which is just outside and partly outside the liquid are pulled in downward direction. मतलब अब ये सभी फोर्सेस की वजह से ये सभी स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस नीचे की तरफ जाएंगे, मतलब सब नीचे जा रहे हैं. इसका मतलब ऊपर में क्या हो रहा है, स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस की कमी हो रही है, एंड those the sphere of influence just touches to the circle, just lie, they are on the surface and forming a surface fill. मतलब स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस ऐसे रहेंगे तो भी नीचे जाएगा, ऐसे रहेंगे तब भी नीचे जाएगा. ऐसे स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस just touches
ऐसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस वाटर सरफेस पे रहेंगे एंड दे आर कोएलिक्स, दे आर टाइटली बॉन्डेड विथ वन अनदर एंड बिहेव forming a thick layer and behave as the elastic membrane। ये इस तरह से काम करता है। और जो छोटे छोटे स्मॉल इंसेक्ट है इसके ऊपर, मतलब ये मच्छर ऐसा है तो इसके पैर ऐसे होते हैं, ये पैर ऐसे फैला देता है एंड देयर वेट बेयर बैलेंस बाय देयर लेग्स। सो इसीलिए स्मॉल इंसेक्ट आर इजीली वॉक ऑन द वाटर सरफेस। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। इसमें छोटा सा दिमाग में रखना है कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस लेना है, एक अंदर रहेगा, इसके ऊपर कंटेन अमाउंट ऑफ फोर्स 0 होगा, ये रहेगा, इसमें नीचे खींचने वाला फोर्स ज्यादा रहता है इसलिए उसको भी नीचे खींच लेते हैं, ये यहां नहीं रहेगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। अब यहां पर आधा फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, ऊपर में इधर में एक्ट हो रहा है, इसीलिए ऐसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी नीचे की तरफ चले जाएंगे। तो रहेंगे कौन से? ऐसे वाले रहेंगे जो जस्ट टचेस है। सो इसके वजह से आपका सरफेस फिल्म तैयार होता है और ऐसे सरफेस फिल्म पर मच्छर जब अपने पैर रखता है सो देयरफॉर उसका वेट दैट आर बैलेंस्ड बाय देयर लेग्स। सो देयरफॉर स्मॉल इंसेक्ट आर इजीली वॉक ऑन द वाटर सरफेस। समझ में आ गया? और इसी अब ऐसे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जैसे जैसे नीचे चले जा रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जा रहा है? मिनिमाइज। सो इसीलिए हर लिक्विड का सरफेस एरिया मिनिमम भी होता है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सामने का पॉइंट नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।